Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is with you from LIMS University, Multan. Students, this is your lecture number 4 regarding your course Modern Literary Theory. And in today's lecture, we are going to discuss ayat, ego, and superego. So, before starting our topic, first of all, I am sharing with you hadith. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. یعنی جب بھی کوئی شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے کسی دوسرے کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، تو انفیکٹ وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. یعنی اپنے اندر اس کی جو برائی ہوتی ہے، جو کمی ہوتی ہے، وہ اس کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ جو کمیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہے، جو خامیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہوتی ہے، ہم انہیں دوسروں کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حدیث کے اکارڈنگ ہم سب کو جو ہے وہ اس طرح کی جو بھی پریکٹسز ہیں، جو بھی ہماری عادات ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. Okay students, now we move towards our today's topic, psychoanalytical theory of personality. In the previous lecture, I briefly told you about ayat, ego, and superego. So in today's lecture, we are going to discuss these 3 points in a detail. First, we see what is ayat. The ayat is the part of the personality structure that includes a human's basic needs, instinctual drives such as sex, hunger, aggressiveness. آیٹ کیا ہے؟ یہ آپ کا جو پرسنالٹی اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا ایک بیسک پارٹ ہے. پریویس لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیٹ جو ہے وہ ان بورن ہوتی ہے، ہماری انسٹنکٹ میں ہوتی ہے، یعنی ہماری جبلت میں موجود ہوتی ہیں جو چیزیں جن سے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیٹ کہتے ہیں. جیسے ہنگر ہے، بھوک کا لگنا، یہ ایک فطری عمل ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا اگریسونیس ہے، اینگر ہے، غصہ ہے، یہ بھی ایک نیچرل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے جب ناپسندیدہ باتیں یا ناپسندیدہ جو ایکٹس ہوتے ہیں اس کے سامنے کیے جاتے ہیں تو اس کو کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. اسی طریقے سے سیکس ہے، سیکس بھی یہ ایک نیچرل فنامنا ہے، اس سے بھی اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. It is based on pleasure principle to avoid pain or displeasure and to obtain pleasure. اب آئٹ کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ پین سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. یعنی انسان کی اس میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم جو ٹربلز ہیں ان کو فیس کرے اور زیادہ سے زیادہ اس کو ہیپینس جو ہے وہ ملے، زیادہ سے زیادہ اس کو کمفرٹ ملے. یعنی اس پہ آپ پین سے اوائڈ کرتے ہیں اور کمفرٹ کی طرف جو ہے انسان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں. اور یہ آپ کی فرسٹ جو پرسنالٹی اسٹرکچر ہے اس کی سٹیج ہے. The ayat is the unorganized part of the personality structure that contains a human basic instinctual drives
id is the only component of personality that is present from birth. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वो कंपोनेंट है इंसान की पर्सनैलिटी का जो बाय बर्थ होता है। जैसे ही इंसान पैदा होता है तो ये उसकी पर्सनैलिटी के साथ मौजूद होता है। It is the source of our bodily needs, wants, desires, and impulses, particularly our sexual and aggressive drives. अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, हमारी ज़रूरियात होती हैं, हमारे जो बॉडी की नीड्स हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। और हम इनसे किसी भी तरीके से, कोई भी ह्यूमन बीइंग है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो इनसे अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, उसको भूख भी लगती है क्योंकि ये उसके जिस्म की, उसकी बॉडी की ज़रूरत है। और उसे गुस्सा भी आता है बहुत सारी बातों पे, जब उसके सामने कोई ऐसी बात की जाए जो उसको पसंद ना हो। और फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इफ़ द माइंड वाज solely guided by the ayat, individuals would find it difficult to wait patiently at a restaurant while feeling hungry and would most likely grab food from neighboring tables. अब इसमें क्या चीज़ है, आयत के अकॉर्डिंग आपने जो है पेन को कम से कम करना है और प्लेजर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना है। अच्छा, इसमें आयत में सिर्फ इंसान अपनी नीड को देखता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसको क्या चाहिए है, सही गलत क्या है वो इसके बारे में नहीं सोचता है। वो नेक्स्ट वाली स्टेजेस होंगी उसमें हम देखेंगे। तो अगर इंसान की पर्सनालिटी का जस्ट पार्ट आयत होता तो फिर क्या होता हमारी सोसाइटी में, फिर डिसऑर्डर होता, इंतशार होता, क्योंकि हर इंसान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करता। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। अगर हमारी ख्वाहिश होती है, अगर हमारा दिल कर रहा होता है, अगर हमारी ज़रूरत होती है, फिर भी हम उसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बाज़ औक़ात हमारे अखलाकियात के ख़िलाफ़ होती हैं, या जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं उसकी रवायात के ख़िलाफ़ होती हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर हम आईएट पे डिपेंडेंट होते, तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बहुत भूख लग रही है और आपके खाने को सर्व करने में काफ़ी टाइम है, तो यकीनन अगर आप आयत को फॉलो करते तो आपके साथ जो टेबल पे खाना लगा हुआ है आप वहाँ से जाके उठा लेते, उसको ग्रैब कर लेते, वहाँ से उसको छीन लेते खाना। ये आयत है, आयत के अकॉर्डिंग ये है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, हम ऐसा तो नहीं करते, हमारे अंदर फिर कंट्रोल भी होता है। अब कंट्रोल कैसे आता है वो हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेजेस में हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन आयत में यही होता है कि आपने सिर्फ अपनी ख्वाहिश को देखना होता है, आपने सिर्फ अपनी ज़रूरत को देखना होता है। ठीक है, हमारी जो सेकंड स्टेज होती है वो ईगो होती है। ठीक है, असल में हमारी जो ईगो होती है वो इसी ईगो, आयड और सुपर ईगो, ये तीनों जो स्टेजेस होती हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, अब ईगो क्या है? द ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी that is responsible for dealing with reality, that attempts to mediate between the id and superego. In its relation to the id, it is like a man on a rampant horse, like the, यहाँ तक देख लेते हैं कि ये क्या है, कि ईगो जो है ऐसे ही है जैसे कि रैम्पेंट का मतलब होता है सर फिरा, तेज। कि आप ऐसे समझ लें कि आपकी जो ईद आयड है वो एक रैम्पेंट हॉर्स है, यानी सर फिरा घोड़ा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसका जहां दिल करता है वो मुंह उठा के चला जाता है। ईगो को हम ऐसे समझ लें उस घोड़े के ऊपर बिठा देते हैं किसी हद तक उसको कंट्रोल करने के लिए। Like the iron, the ego seeks pleasure and avoids pain when appropriate outlet is found.
But unlike the id, the ego is concerned with devising a realistic strategy to get pleasure. अब देखें, आपको भूख लगी है, आप खाना खाना चाहते हैं, ठीक है। सपोज आप कैंटीन पे बैठे हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आपके साथ वाले जो टेबल्स हैं वहाँ खाना लगा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खाना चाहते हैं, खाना लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास मनी नहीं है। अब आयत के अकॉर्डिंग आपकी ज़रूरत क्या है? खाना खाना। वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, इससे आयत को कोई कंसर्न नहीं होती। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना होता है। आयत के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? वो खाना जो है वो दूसरों से जाके आप छीन लेंगे या कैंटीन वाले से जाके छीन लेंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन जो आपकी ईगो है वो आपको ये कहेगी कि खाना लेने के लिए सबसे पहले आपको मनी अरेंज करनी है। इसमें रियलिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। आप प्लेजर तो हासिल करना चाहते हैं, आप अपनी ज़रूरत तो पूरी करना चाहते हैं ईगो में, लेकिन उसके लिए आप एक पॉजिटिव वे जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो सोर्सेज हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। आयत में क्या है, दोबारा से आपको बता रही हूँ ताकि ये चूंकि इम्पोर्टेंट बहुत है, ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि आयत का मकसद क्या होता है। सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करना, जायज़ नाजायज़, इससे आयत को कोई कंसर्न नहीं होती। लेकिन ईगो में क्या होता है? ख्वाहिश पूरी करने के लिए आप एक प्लान करते हैं, जो एक पॉजिटिव प्लान होता है, जो एक रियलिस्टिक प्लान होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कैंटीन वाली एग्जांपल दी, तो उसमें अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? खाना लेने के लिए आप मनी अरेंज करेंगे। ये आपकी क्या होगी? रियलिस्टिक अप्रोच होगी और ये आपकी ईगो होगी, ठीक है। The ego is a component of personality that is responsible for dealing with the reality, just as the id is the unconscious part of human personality. अब id मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि ये अनकॉन्शियस पार्ट होता है जो पहले से हमारे माइंड में मौजूद होता है। ईगो इज द कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट। ही अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी वहां से आपको समझ आ गया होगा कि इसमें एक लॉजिकल बातें होती हैं। The ego function in both the conscious, pre-conscious and unconscious mind. अब ईगो में तीनों चीजें आएंगी, कॉन्शियस भी आएगा, प्री कॉन्शियस भी आएगा और अनकॉन्शियस भी आएगा। यानी प्री कॉन्शियस का मतलब पहले से आगाह हो जाना, यानी आप कैंटीन जाने से पहले ही आप प्री कॉन्शियस हो जाएंगे कि आप कैंटीन पे अगर खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ मनी जरूर होनी चाहिए। The ego operates on the reality principle, which strives to satisfy the ear's desires in realistic, logically and socially appropriate ways. ये भी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आयड जब ख्वाहिश करेगी तो ईगो उसको क्या करेगी? उसकी अप्रोच रियलिस्टिक होगी, वो उसके लिए पॉजिटिव सोर्सेज ढूंढेगी ताकि आयड की जो ख्वाहिश है, डिज़ायर है, ज़रूरत है, उसको पूरा किया जा सके। और इस तरीके से पूरा किया जा सके कि वो आपकी जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशन है, उसके अगेंस्ट भी ना हो। अब वही वाली एग्जांपल मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप कैंटीन पे गए हैं और खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास मनी नहीं है। अब मनी अरेंज करेंगे। अब मनी अरेंज करने के भी आपके पास मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। अब मनी अरेंज करने का ये भी हो सकता है कि आप किसी के जाके जेब काट लें, किसी की चोरी कर लें, ठीक है, किसी से ज़बरदस्ती छीन लें। ये भी तो एक तरीका है ना मनी हासिल करने का। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, ईगो आपको ऐसा करने से रोकेगी, क्योंकि ईगो के अंदर आपने ये भी देखना है कि सोशली अप्रोप्रिएट वेज, कि जो आप वे अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का, अपनी नीड को पूरा करने का, वो आपके समाज के मुताबिक हो, उसके अगेंस्ट ना हो। जाहिर सी बात है, कोई भी सोसाइटी हो, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं,
تو کوई भी सोसाइटी आपको चोरी की इजाज़त नहीं देगी, दूसरों से पैसे छीनने की इजाज़त नहीं देगी, किसी की जेब काटने की इजाज़त नहीं देगी। तो इसमें ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो पॉज़िटिव हो और आपके जो ट्रेडिशन हैं, आपकी जो नॉर्म्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग हो। Next is superego. The superego is the moral part of the personality that includes the values, social rules, and morals of society, which are learned from people's parents and others. The superego's function is to control the IR's impulses such as social prohibitions, taboos, sex, and aggression. अब देखें, आपकी ख्वाहिश तो है, ठीक है, किसी से बात करने की। हो सकता है आप मेल हों और फीमेल से बात करना चाहते हो, उसके साथ कोई रिलेशन बनाना चाहते हो, लेकिन उसमें क्या चीज़ होगी, आपकी ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि आपकी सोसाइटी आपको इस अलाउ नहीं करती है कि इस तरह की जो मिक्सिंग होती है मेल और फीमेल की, या विदाउट किसी जायज़ ताल्लुक़ के आप किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो आपको क्या है, इससे मना करेगी कि आपकी सोसाइटी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। टैबूज़ का मतलब भी वही होता है, प्रोहिबिटेशंस, यानी जो भी प्रोहिबिटन होती हैं चीज़ें, फॉरबिडन होती हैं हमारी सोसाइटी में, जिन चीज़ों को सही नहीं समझा जाता। सेक्स एंड एग्रेशन वो भी इसी में ही आती हैं। The last component of personality to develop is the superego. The superego provides guidelines for making judgments. The superego represents the norms and qualities of the individual, his family, and the society, and is an ethical constraints on the behavior. अब इसमें भी वही बातें हैं कि आपको ख्वाहिश तो पूरी करनी है, ठीक है, आपके इड ने एक नीड को ज़ाहिर किया, ठीक है, और आपकी ईगो ने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई। सुपर ईगो उस स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करेगी कि जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो आपकी जो ट्रेडिशंस हैं, वो आपकी हो सकता है कि वो अपनी अलहदा फैमिली, देखिए फैमिली टू फैमिली भी आपकी जो ट्रेडिशंस होती हैं, कस्टम्स होती हैं, वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि वो आपकी फैमिली के अगेंस्ट हों, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है सुपर ईगो के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हों, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी सोसाइटी है, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के दूसरे लोग हैं। और एथिकली यानी अखलाकी लिहाज से ये आपका जो रवैया है उसको कंट्रोल करती है, उसको रोकती है। It operates on the moral principles, able to differentiate between good and bad, what is right and wrong. यानी सुपर ईगो आपको बताती है कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है। आयत ने क्या किया, आपको ख्वाहिश बताई, अपनी नीड बताई, और ईगो ने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई उसको पूरा करने के लिए। सुपर ईगो क्या कहेगी कि ये गलत है या ये सही है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको इससे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब आयत कहती है कि आई वांट इट नाउ, यानी कोई भी चीज़, आप किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ईगो क्या करेगी, आई नीड टू डू अ बिट एंड प्लानिंग टू गेट इट। आपने एक चीज़ की ख्वाहिश की है, हो सकता है कि आपको मनी चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है, या हो सकता है आपको एक घर बनाना है, घर खरीदना है, आपको घर चाहिए, लेकिन ईगो क्या कहेगी कि आपने प्लानिंग करनी है घर खरीदने के लिए, ठीक है। सुपर ईगो क्या कहेगी, यू कांट हैव इट राइट नाउ। अब सुपर ईगो आपको बताएगी कि आप कैसे घर खरीदेंगे, आपके पास तो इतनी मनी ही नहीं है, ठीक है। इसमें भी यही एग्जांपल्स हैं। दी आयट, आई वांट चॉकलेट, ये आपकी ख्वाहिश है कि आप चॉकलेट खाना चाहते हैं। ईगो क्या कहेगी, ईट अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, क्योंकि ईगो का मकसद ही आपकी जो आयट है उसकी ख्वाहिश को पूरा करना होता है, ठीक है। तो ईगो क्या कहेगी कि आप ये चॉकलेट खा लें, उसको थोड़ा सा खा लें, लेकिन सुपर ईगो क्या कहेगी कि यू आर ऑन अ डाइट।
کہ آپ ڈائٹ پہ ہیں، اس نے آپ کو اویئر کروانا ہوتا ہے. اب اس میں آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ سپر ایگو جو ہے وہ آپ کو وارن کرتی ہے، آپ کو اویئر کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، اس ٹائم آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ سپر ایگو کی سٹیج پہ ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپل بھی اسی طریقے سے ہی ہے. آیت کہتی ہے آئی وانٹ اٹ ناؤ. ایگو کہتی ہے مے بی آئی کین فائنڈ آ کمپرومائز، کہ ہو سکتا ہے کچھ اس کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے. سپر ایگو کہتی ہے نائس پیپل ڈونٹ ڈو دیٹ، کہ اچھے لوگ ایسا نہیں کرتے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی آیت نے خواہش تو ظاہر کر دی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ایگو نے بنائی ہے وہ پوزیٹیو نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہو جس سے دوسروں کو ہارم محسوس ہو، اس سے لوگ ہرٹ ہوں، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. تو اب پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہماری 3 سٹیجز ہیں پرسنالٹی سٹرکچر کی: آیت، ایگو اور سپر ایگو. آیت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنی نیڈز کو دیکھتا ہے، اپنی ضروریات کو دیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے، اسے کیا چاہیے ہے. ٹھیک ہے. ایگو کیا کرتی ہے؟ ایگو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے لیے پلان کرتی ہے، اس کے لیے اسٹریٹجی بناتی ہے. سپر ایگو کیا کرتی ہے؟ ایگو نے جو پلان بنایا ہے، جو اسٹریٹجی بنائی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے کہ either that plans, that strategies are according to the norms and traditions of the society, of the family and the surrounding people are not. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کے نارمز کے اکارڈنگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ غلط ہوتی ہیں تو سپر ایگو آپ کو اس سے روک دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی رولز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اور ان کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر سپر ایگو موجود نہ ہو تو پھر انسان اور جو جانور ہے اس کو جو ڈفرنس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. کیونکہ جانور یہی کرتا ہے نا کہ اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ اس کو پوری کرتا ہے، چاہے وہ جس طرح سے بھی پوری کرے. ٹھیک ہے. چاہے وہ ایون اپنے جو قریبی اس کے جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے. بعض اوقات ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو ایون اپنی بھوک، اپنی ضرورت مٹانے کے لیے اپنے ہی بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آئیڈ ہوتی ہے. چونکہ وہ ہیومن بینگ نہیں ہوتے، ان میں سپر ایگو نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ان میں ایگو ہوتی ہے کہ وہ پلان کریں اور اس کو پراپر وے سے فلفل کریں. تو اگر جسٹ آیت کو ہم فالو کریں گے، ہیومن بینگ کوئی بھی اگر انسان ایسا کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ انسان نہیں ہے، پھر وہ بھی انسان کی کیٹیگری سے گر کر جانوروں کی کیٹیگری میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آل آف یو گاٹ ٹوڈیز لیکچر ویری ویل اینڈ انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول ڈسکس something else. Till then, Allah Hafiz.